لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اما بعد فقط قال امام علی علیہ الصلاۃ والسلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، العدل حیات الاحکام۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اولاً آپ تمام حضرات کے خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایک باواز بلند نعرہ صلوات سے زمانے کے امام کی خدمت مبارکباد پیش کریں۔ اور دوسری یہ کہ آج کی شب اور اس جشن کی بہت بہت میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے بہرحال وقت نہیں ہے، علماء کی فہرست طویل ہے، شعراء کرام ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے اشعار آپ تمام مومنین سماعت کر رہے تھے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، نہ میں لیتا ہوں۔ دو چار بات مجھے کرنی ہے، وہ یہ کہ ایک تو پہلے ہی ذہن میں انسان کو یہ بٹھا لینا چاہیے کہ جس علی کو تم مانتے ہو وہ علی ہمیں ایسے نہیں مل گیا۔ جس علی کو تم مانتے ہو وہ علی تمہیں ایسا نہیں مل گیا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، نہیں تو میں بتاتا آپ کو کہ مولا علی کی عظمت کیا ہے۔ مولا علی کی محبت کا پہلا فیض یہ ہے کہ جب کوئی علی سے محبت کرتا ہے تو پروردگار جتنی محبت تمہارے دل میں بڑھتی جائے گی اتنا تمہارے گناہوں کو مٹاتا جائے گا۔ علی کی محبت، علی کی محبت۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں اچھا اس علماء نے اس پہ شرح بھی کیا ہے۔ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں آپ نے تو ایسی حدیث بیان کر دی، ایسا قول بیان کر دیا۔ قوم گمراہ ہو رہی ہے۔ جو گمراہ ہو رہا ہے وہ اپنے دامن میں جھانک کے دیکھے کہیں اس نے حرام غذا تو نہیں کھائی۔ ہائے 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 ہائے، جو گمراہ ہو رہا ہے وہ اپنے دامن میں گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ اس کے ہاتھوں سے کوئی گناہ تو نہیں ہوا، شکم میں حرام مانی گئی۔ اس لیے کہ جہاں علی کی محبت منزل عروج پہنچتی ہے وہاں گناہ نہیں ہوتا۔ جہاں علی کی محبت، بہت اچھا، علی کی محبت، اور یقین جانیے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی سوانح حیات وقت نہیں ہے میرے پاس، نہیں میں عرض کرتا کہ آپ یہ سمجھ لیجئے مجھے جو موضوع دیا گیا ہے میں کیا کہوں۔ اس موضوع کو لے کر بس ایک جملہ ہی کہنا چاہتا ہوں۔ تمام زمانوں سے بزرگوں نے اپنی زندگی گزار لی، تم سے یہ سوال ہوگا کہ تم جان رہے تھے تو بچوں کو کیوں نہیں بتایا؟ ہائے ہائے، لفظ پہنچے تو بولیے گا، تم جان رہے تھے تو تم نے بچوں کو کیوں نہیں سنوارا؟ بچوں کو سنوارنا ہر بزرگ کی ذمہ داری ہے۔ اگر باپ اپنے بیٹوں کو نہیں سنبھال پا رہا ہے تو اپنے بھائی سے کہے، بھائی نہیں سنبھال پا رہا ہے تو گاؤں کے بزرگوں سے کہے، اس سے کہو جس سے وہ مانوس ہو، اور کہو کہ یہ دین کی راستہ پہ نہیں چل رہا ہے، اسے چلانا چاہیے۔ عزیزوں میں آپ کے سامنے کیا عرض کروں، آج آپ یہ دیکھیے عدالت نہیں ہماری قوم میں، عدالت نہیں ہے۔ ہم علی کو تو مانتے ہیں، علی کی نہیں مانتے۔ ہائے ہائے، نہیں لفظ ایسا تھا جو دلوں تک پہنچا نہیں۔ ہم علی کو تو مانتے ہیں، علی کی نہیں مانتے۔ جس دن ہم علی کو مان رہے ہیں اور علی کی مان لیں گے تو پھر یقین جانیے اسی مجمع میں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں پھر کمال کیا ہوگا، کوئی میسم بنے گا، کوئی سلمان بنے گا، کوئی ابو ذر بنے گا۔ یہ علی کی محبت کا کمال ہے۔ اور کوئی ہم سے یہ نہ کہے مولانا وہ نماز پڑھتے تھے انہیں کیا ملا۔ آج ہماری قوم اس بات کو محسوس کر رہی ہے جو جتنا دیندار ہوتا ہے اس کے جنازے میں اتنے لوگ ہوتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، میری بات دلوں تک نہیں پہنچی۔ جو
جو جتنا دیندار ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ محبت کا کیا فائدہ, عبادت کا کیا فائدہ. یقین جانو جس علی کی شب ولادت منانے کے لیے تم اکٹھا ہوئے ہو اس علی نے فرمایا ہے زندگی ایسے گزارو کہ تم سے ملاقات کے لیے لوگ تڑپے اور مر جاؤ تو تمہاری قبر پر فاتحہ پڑھے. علی کی محبت, علی کی محبت. یقین جانیے اگر انسان اپنی زندگی میں عدل کو قائم کر لے گا تو پھر یقیناً اس کی زندگی بدل جائے گی, احساس بڑھتا جائے گا. آج ہم سے لوگ کہتے ہیں مولانا اتنی تقریریں ہوئیں کوئی اثر نہیں ہوا. ہائے ہائے مولانا اتنی تقریریں ہوئی کچھ اثر نہیں ہوا. ہم نے کہاں سے ہوگا اثر؟ عبادت کرو تو خلوص میں کرو, نماز پڑھو تو خلوص میں کرو, عزاداری کرو تو خلوص میں کرو. یہ کوئی نہ کہے, یہ کوئی نہ کہے کہ بھائی وہ کیسے, ان کو نہ دیکھو, تم اپنے آپ کو دیکھو. اور میں آپ کو بتاؤں آج ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ عبادت کا فائدہ کیا ہے. دیکھیں علماء کرام یہاں بیٹھے, دامنے وقت میں گنجائش نہیں, ایک جملہ جو روایات سے نکالا ہے جملہ میرا ہے, مفہوم روایت کا ہے. ایمان سے جب پوچھا گیا مولا خلوص عبادت کا فائدہ کیا ہے, اگر کوئی خضوع کے ساتھ معرفت کے ساتھ, عقیدے کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, طہارت کے ساتھ, تقوی کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ, کردار کے ساتھ, علم کے ساتھ, کمال کے ساتھ, دولت کے ساتھ, شہرت کے ساتھ, منصب کے ساتھ, اتحاد کے ساتھ, اتفاق کے ساتھ, قوم کو لے کر اگر کوئی ان تمام صفات کے ساتھ ایک مرتبہ بھی کہے گا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, نہیں محسوس نہیں کر رہے ہیں. اگر بات دلوں تک پہنچے, دیکھیے علی کی محبت کا فائدہ کیا ہے. وہ علی نہیں جو آپ کو اس زبانوں کو مجبور نہ کر دے. ہائے ہائے نہیں, میرے پاس وقت نہیں ہے, موضوع میرا سخت ہے, میں اسی میں لانا چاہتا ہوں, مگر اس سے پہلے میں آپ کے ذہنوں کو آمادہ کرنا چاہتا ہوں. جس علی کو تم مانتے ہو وہ علی کتنا بلند, ہائے ہائے لفظ سہج جائے جوانوں تو بولیے گا, جس علی کو تم مانتے ہو وہ علی کتنا بلند. یہی علی آدم کا علم, اسی علی میں نوح کا تقوی, اسی علی میں ابراہیم کی خلت, اسی علی میں موسیٰ کی ہیبت, اسی علی میں عیسیٰ کا زہد, اسی علی میں. یہی علی جب مولود, یہی علی جب کعبے میں آیا, یہی علی جب کعبے میں آیا تو مولود حرم کہلایا, آغوش نبی میں آیا تو نور رسالت کہلایا. یہی علی جب رسول کی زبان چوسی تو لہموں کا لہمی کے مصداق کہلائے. یہی علی جب بستر رسول پہ آئے تو یہی علی کیا لقب دیا اللہ نے کہ آئے علی اگر تم آج سو جاؤ گے, رسول نے کہا اے علی تم آج اگر سو جاؤ گے تو نبی کی جان بچ جائے گی. ادھر مولا علی بستر رسول پر سوئے تو ٹائٹل جانتے ہو کیا ملا, یہی علی ہے جو مرضات اللہ کا ٹائٹل لے لیا. ہائے ہائے نئی نس پہنچ جائے تو بولیے گا جوانوں, یہی علی جب کعبے میں آئے تو مولود حرم کہلائے. یہی علی جب آغوش رسول میں آئے تو نور رسالت کہلائے. یہی علی جب انہوں نے زبان رسول چوسی تو لہموں کا لہمی کے مصداق کہلائے. یہی علی جب بستر رسول پہ آئے تو مرضات اللہ کا ٹائٹل ملا. یہی علی جب بزم اشیر میں آئے تو مرضات الوجود شاہد رسالت کہلائے. یہی علی جب بزم غدیر میں آئے تو کائنات کے مولا کہلائے. یہی علی جب مباہلے میں آئے تو نفس رسول جس علی کو ہم مانتے ہیں, بہت توجہ, ایک جملے تک مجھے لانا ہے, جس علی کو ہم مانتے ہیں یہی علی جب مباہلے میں آئے تو نفس اللہ کہلائے. یہی علی جب بدر میں آئے تو فاتح بدر کہلائے. یہی علی جب خیبر میں آئے تو شاہ لافتہ کہلائے. یہی علی جب خندق میں آئے تو کل ایمان کہلائے. یہی علی جب محراب عدالت میں آئے تو امام دو جہاں کہلائے. یہی علی جب قرآن پڑھا تو نقطۂ بائے بسم اللہ کہلائے.
जाए। हाय हाय, नहीं नहीं, यही अली जब मेहरा, यही अली जब उन्होंने हालत रुकू में ज़कात दी तो साहिब इन्नमा कहलाए। यही अली जब साहिल को रोटियां देने लगे तो सरताज हराता कहलाए। यही अली जब उन्होंने आँख खोली तो ऐनुल्लाह कहलाए। हाथ उठाया तो यदुल्लाह कहलाए, गुफ्तगू की तो लिसानुल्लाह कहलाए। यही अली जब तख्त पर बैठे तो हाकिमे दौरा कहलाए, और जब ठोकर मार कर तख्त को खाक पर बैठे तो अबू तुला। अगर इंसान मौला अली की अजमतों को पहचान ले, खुदा की कसम, जानते हैं आप, मैंने अपने उस्ताद अभी भी वो करबला में दर्स दे रहे हैं मराद कराम, उनसे हमने पूछा था कि सरकार हमारे यहाँ महफिलें होती हैं, मजलिसें होती हैं, प्रोग्राम होता है, लोग अली अली करते हैं, इसका क्या फ़ायदा है? कहा कि फ़ायदा जानते हो, अली का नाम इसमें आज़म है। हाय 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 हाय, अली का नाम दामने वक्त में गुंजाइश नहीं तो मैं रिवायत सुनाता। लोग हमसे कहते हैं ये पटके पे या अली क्यों, ये बाजार खाने में या अली क्यों, ये घरों की दीवारों पे या अली क्यों, ये पंजतन का नाम क्यों? जानना चाहते हो? बस एक जुमले में बताता हूँ। पंजतन का नाम, चारदा मासूमीन का नाम, जिस कागज पर लिख दोगे, जिस दीवार पर लिख दोगे, जिस जगह पर लिख दोगे, जिस जगह पर, जिस कागज पर, जिस जगह पर तहरीर कर दोगे, रोजे कयामत वो जगह फक्र करेगी। हाय हाय, नहीं महसूस किया आपने? वक्त नहीं है मेरे पास, वो महसूस और वो फक्र करेगी। जब उससे पूछा जाएगा तू फक्र क्यों कर रही है तो मुस्कुरा के कहेगी मैं एक कागज था, मेरा वजूद मिटने वाला था। इस शख्स, हाय 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 हाय, मैं एक कागज था, मैं एक कागज, सलमदार भाई, मैं एक कागज था, इस शख्स ने या अली लिखकर मुझे भी जिंदगी दी। हाय 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 हाय, इस शख्स ने या अली लिखकर मुझे भी जिंदगी दी और खुद को भी महफूज कर लिया। याद रखिए अली का नाम इसमें आजम है, मगर खुश होइए फजाइल पे, मौला करे आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मगर ये जान लो कि जिस अली का तुम नारा लगाते हो वो अली तुम्हें जन्नत तो दिलवाएंगे, मगर एक लम्हे के लिए हाकिम है ना, कायनात के मौला है ना, इतना तो सवाल करेंगे। अली का नाम ले रहे थे मगर काम वो कर रहे थे जो अली को पसंद नहीं आया, काम वो कर रहे थे जो अली को पसंद नहीं। यकीन जानो अगर हमने अपनी जिंदगी में अदालत को कायम कर लिया, जानते हैं अदल किसे कहते हैं? अदल जानते हैं? एहसास, ज़मीर जिंदा हो जाए, मैं पहचानने लगूं, मीर साहब मैं पहचानने लगूं, ये मेरा भाई है, ये मेरा चचा है, ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा भांजा है। लोग कहते हैं मौलाना हम तो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जी लो या अली कहकर कब्र में तो हम तुम्हें दाखिल कर सकते हैं, मगर वही अली आगे पूछेगा, आ गए, वही अली सवाल ये करेगा, देखो तुमने मुझे माना है तो हम तो करेंगे करीम हैं, हम तुम्हें ये बताएंगे कि अब पूछा जाएगा मतलब का, तो मैं कह दूंगा, कह दो अल्लाह, मन दीनों का तो मैं कह दूंगा कहो इस्लाम, मन रसूलों का तो मैं पीछे से कह दूंगा कहो मोहम्मद मुस्तफ़ा। मगर याद रखो मौला एक सवाल जरूर पूछेंगे, आ तो गया मेरा नाम ले लेके दुनिया में चिकता रहा, मगर तेरे नामा अमाल ये बता रहे हैं कि भाई तुझसे नाराज, पड़ोसी तुझसे नाराज, भतीजा तुझसे नाराज, घर वाले तुझसे नाराज, अरे क्या करके आया है? वहां तुम ये नहीं कह सकते मौला हमने तो अली अली किया, कहा अली अली किया तो उसकी जजा तो हम तुम्हें बाद में देंगे, मगर तुमने भाई का दिल दुखाया सजा बरसक में मिलेगी, तुमने नमाजें नहीं पढ़ी सजा बरसक में मिलेगी, तुमने ये काम नहीं किया सजा बरसक में मिलेगी। ये कोई खुशफहमी में ना रहे, हम नमाजें नहीं पढ़ते, हम नहीं पढ़ेंगे ना, मत पढ़ो नमाजें मत पढ़ो, मगर याद रखो जिस अली को तुम मानते हो वो अली आकर तुम्हारे सामने कहेंगे, जिस नमाज को मैंने पढ़ने के बाद लोगों ने ये ऐलान किया कि अगर चाहते हो खुदा से बात करो तो नमाज पढ़ो। हाय हाय हाय,
बोलो भैया, वाह 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 वाह। अजीजों, अली को मानना है तो अली की मानो, माशाल्लाह। अली की मानो। मैं उन लोगों को भी नहीं मानता जो चौराहों पर गलियों में तबलीग करते हैं। तबलीग होनी चाहिए इंसान के अपने घर से। अगर तुम्हारा ज़मीर जिंदा है और तुम्हारे दिल में अली की मोहब्बत है तो वह मोहब्बत इतनी बढ़ा लो कि मोहब्बत तुम पर मजबूर कर दे। नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, ज़कात दो। जब तुम्हारा ईमान और तुम्हारी मार्फत उस मंजिल तक पहुंच जाएगी तब किसी मौलवी को तबलीग करने की जरूरत नहीं है। नहीं, अभी आपने महसूस नहीं किया। चलिए, मैं ज्यादा वक्त तो नहीं हो गया, सरकार पढ़ते रहिए। ज्यादा वक्त हो जाए तो मुझे इशारा कर देना, मैं फौरन वहीं तक खत्म कर दूंगा। देखिए, मौला अली अलैहिस्सलाम, हम नमाजें पढ़ते हैं, कभी आपने सोचा ये नमाजें 17 रकत क्यों हुई? सोचा आपने? सोचा मगरिब की 3 रकत क्यों? सुबह की 2 रकत क्यों? जोहर असर की 4 रकत क्यों? ये कभी आपने सोचा इशा की 4 रकत क्यों? ये किबला बैठे हैं आजम साहब, ये बताएंगे आपको कि जब आप इनसे पूछेंगे तो फौरन शेख सदूद की किताब उठाकर आपके सामने रख के बताएंगे। जोहर की 2 रकत वाजिब थी, 2 रकत का अल्लाह ने इजाफा किया हजरत रसूल खुदा के मोहब्बत और रिसालत में। नमाज कितनी हो गई? 4। बोलते जाइए। जोहर की कितनी रकत थी? 2 रकत। 2 रकत का इजाफा हुआ खत्मी बरतबत की मोहब्बत और रिसालत में। नमाज कितनी हो गई? 4। असर की 2 रकत नमाज वाजिब थी, 2 रकत का अल्लाह ने इजाफा किया मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। नमाज कितनी हो गई? 4। बोलते रहिए। मगरिब की 2 रकत नमाज वाजिब थी, अल्लाह ने अपनी कनीज़ खास हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मोहब्बत में 1 रकत का इजाफा किया। नमाज कितनी हो गई? 3। नमाज ऐशा 2 रकत वाजिब थी, अल्लाह ने 2 रकअत नमाज का इजाफा किया इमाम हसन मुश्तबा की मोहब्बतों विलायत में। नमाज कितनी हो गई? 4। अब बची सुबह की नमाज। अल्लाह ने कहा यही नमाज तो है जिससे हम इम्तिहान लेंगे ज़दारों का। हाय 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 हाय, मातम करते हो अज्र मिलेगा, गिरिया करते हो तौबा की तौफीक होगी। कोई ये ना कहे कि रोने का फायदा क्या है। मैं बताऊं आपको, जो भी गमे इमाम हुसैन पर रोता है, अगर जिंदगी के आखिरी लम्हे में भी उसने कह दिया, रोने का फायदा जानते हैं दुनियावी एतबार से क्या है? अल्लाह तुम्हारी तौबा को आखिरी लम्हे कबूल करेगा। हाय 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 हाय, जो इमाम हुसैन पर रोता है उस रोने का फायदा वो तो उलमा ने बयान किया, खुतबा ने, जन्नत रोने वाले को जन्नत, वो तो एक अलग बहस है। उलमा ने लिखा है कि अगर तुम इमाम हुसैन पे ज्यादा रोगे तो तुम्हें तौबा की तौफीक होगी। हाय 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 हाय। तो अज़ादारों, ये 2 रकत नमाज जो फज्र की है वो इमाम हुसैन से मखसूस है। अल्लाह पूछेगा जरूर कि 2.5 महीने मातम तो किया तुमने, सुबह की 2 रकत नमाज कौन पढ़ेगा? करबला की तमन्ना में लोगों ने टोकन तो कटवा लिया, पूछो जरा उन लोगों से क्या उन्होंने सुबह की नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी? पूछो उनसे, सवाल करो। ये जिम्मेदारी हमारी है, ये जिम्मेदारी हमारी है कि हमने 2 रकत नमाज पढ़ी कि नहीं। याद रखो, मैंने करबला में जिंदगी गुजारी है, मैंने देखा है, अगर 1 हफ्ता भी आपने खुलूस से नमाज पढ़ के ये कह दिया मौला ये नमाज आपसे मखसूस और हम ये सुबह की नमाज पढ़ लें, अगर सच्चे दिल से आपने कह दिया, हफ्ता दूसरा नहीं लगेगा। हाय 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 हाय। मगर नमाज की शर्त ये है, भूख से बचो, झूठ से बचो, गीबत से बचो, चुगलखोरी से बचो, कतई सिले रहमी से बचो। आज हमारे समाज में सबसे ज़्यादा जो बड़ी बुराई आ गई है वो है सिले रहमी ख़त्म हो चुकी है मुकम्मल तरीके से। बस अजीज़ों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अपने आप पर अदालत को आप कायम करें। जिस दिन आप अपने आप को अपने ऊपर अदालत को, जो जुमला मैंने आपके सामने तिलावत किया है मौला अमीरुल मोमिनीन का, बहुत खूबसूरत जुमला है, अल अदलो हयातुल अहकाम। अदल जिंदगी का अहकाम है,
अहकाम जानते हैं किसे कहते हैं? जहाँ जगह जगह पर पाबंदियां हैं। सुबह की 2 रकात है तो हम 2 ही रकात पढ़ेंगे कि खुलूस आजा मौलाना आज 3 पढ़ लें, नहीं 3 नहीं 2 कहा है शरीयत ने तो 2 ही पढ़नी है। मगरिब की 3 कही है तो 3 पढ़नी है। आज तो हद हो गई, मौलाना ये कहाँ से आप ले आए? हमारा दिल तो ऐसा कह रहा है। तुम्हारा दिल नहीं देखा जाएगा, ये देखा जाएगा कि मौला क्या कह रहे हैं और मौला क्या चाहते हैं। तो अदालत को राइज करिए। और मौला अली अलैहिस्सलाम ने यही काम किया। उन्होंने अपनी जिंदगी को इस तरीके से आदिल बनाई कि दुनिया वालों को कहना पड़ा अली की तलवार भी आदिल। हाय 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 अलमदार भाई, दुनिया ये कहने पर मजबूर हो गई। हाय हाय दुनिया, ये जुमला कहने से पहले मैं खुद मुकम्मल तरीके से मौला की मोहब्बत में डूब गया हूँ। अगर मैं जुमला पढ़ ले गया, दुनिया अपने कलम से इस बात को लिखने पर मजबूर हो गई। हाय हाय मजबूर हो गई। क्या मजबूर हुई? वाह अली, तेरे नाम के जैसा किसी का नाम नहीं, तेरी जात से जैसी किसी की जात नहीं। आए अली, तूने जबान खोली तो वो भी अदल वाली, तलवार चलाई तो वो भी अदल वाली, हुकूमत की तो वो भी अदल वाली, फैसले किए तो वो भी अदल वाले। जानते हैं कैसे कैसे फैसले मेरे मौला ने किए? एक छोटा सा फैसला आदम साहब किबला जो मुफ्ती जाफ़र साहब ने नकल किया है, बहुत से उलमा ने नकल किया है। मैं अब चूँकि उर्दू में वो किताब है तो दस्तयाब हो जाएगी, आप उसमें पढ़ लीजिएगा कि उन्होंने एक छोटा सा वाक़या फैसला कि मेरे मौला किस तरीके से फैसले करते थे। चुनांचे रिवायत कहती है कि एक जवान शख्स मौला की खिदमत में आया और आके कहने लगा, मौला मौला, मेरा बाप तिजारत के लिए गया था और वहाँ से वो वापस नहीं आया। वो इधर आप मुतवज्जे रहिए, मौला खुद हिफाजत कर देंगे। सलवात पढ़ रहे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत तवज्जो, बस ये छोटा सा वाक़या 2 मिनट का, और आप समात कर लें और इंशाअल्लाह खत्म हुआ। अजीज़ों समात करिए। मौला की खिदमत में आया और कहने लगा, मौला मेरा वालिद सफ़र पे गया था और वापस नहीं आया। तो मौला ने कहा, भाई वापस क्यों नहीं आया? कहा, मौला वो लोग जो उनके साथ गए थे वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारा बाप तो दौरान सफ़र ही मर गया, दौरान सफ़र मर गया। और मौला, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मरा नहीं, इन लोगों ने मार दिया। हाय हाय, देखिए अली किसे कहते? मौला मौला, वो मरा नहीं, इन लोगों ने उसे मार दिया। मौला ने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? कहा, मौला जब मेरा बाप यहाँ से गया था तो उसके पास तिजारत का बहुत ज़्यादा सामान था, तो जब सामान ज़्यादा होगा तो मुनाफा भी ज़्यादा होगा, तो सामान तो कसरत के साथ गया था, आया नहीं मेरा बाप, तो इसका मतलब यह है कि झोल मोल दौरान सफ़र हुआ है। मौला मैं काजी शुरई के पास गया, काजी के पास, तो उसने ये कहा कि भाई जाओ तुम्हारा बाप मर गया। कहा, तुम्हारे पास कोई गवाही है कि ये कातिल है? कहा, गवाही तो नहीं है। कहा कि जब उनको बुलाया तो उन्होंने कहा, हुजूर हम तो उनके साथ में थे, जब हम कह रहे हैं कि मर गया तो मर गया। कहा, अच्छा, मतलब वहाँ तो हम गए थे, वहाँ मगर कोई फैसला नहीं हो पाया। देखिए, जब इबादत, इल्म, कमाल, अदालत और ये तमाम चीज़ें जितने शरीयत के रुकन हैं जहाँ डगमगाने लगते हैं वहीं अहले बैत सहारा देते हैं। टूट गया था उसका दिल, करे काजी ने भी फैसला हमारे हक में नहीं किया, अब हमारा क्या होगा भैया? अब हमें कौन देखेगा? बैठता सुन्नत का अली, बस पूरी उम्मीद के साथ आया हूँ। अब मेरा यहाँ पे रोक के दिल जुमला कहने का दिल चाहता है, अरे तू किस अली से कह रहा है? उस अली से जो बगैर मांगे अता कर देता है। हाय हाय, उस अली से कह रहा है जो बगैर मांगे अता कर देता है। बस एक मर्तबा मेरे मौला ने कहा, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। कहा, चलो मेरे साथ। कायनात का अमीर आगे आगे, वो जवान पीछे पीछे पहुंच गए मौला उस गाजी के पास। और पहुंचने के बाद मौला ने कहा, तुमने इसके बाप के हक में क्या फैसला किया? कहा, मौला इसके पास कोई गवाह नहीं था, हमने उन लोगों को बुलाया, उन्होंने कहा कि इसका बाप मर गया
और जब मर गया दौरान सफ़र तो सारी चीज़ें तमाम हो गई। मौला इसके पास कोई गवाह नहीं था, तो इस वजह से हमने फैसला उसके हक में दे दिया। मौला ने कहा बस इतनी सी बात, काजी तुम्हें किसने बना दिया, तुम कैसे फैसले ये कर रहे हो? कहा मौला मैं नहीं समझा, आप कैसे इसका फैसला करेंगे? मौला ने अबू ज़र को बुलाया, कंबर को बुलाया, मिक़दाद को बुलाया, अपने तमाम चाहने वालों को बुला के कहा, कहने लगे कितने अफराद थे? अब अलग अलग तादाद लिखी है, कमो बेश 10 अफराद तकरीबन लिखे गए हैं तारीख के औराक में। वो ये कहते हैं मौला ने कहा 10 मकान 10 मुकाम खाली करवाओ और 10 लोगों को अलग अलग रखो। एक मेरा आदमी उनके पास जाके पूछेगा इसका बाप जब मरा तो कब मरा, कैसे मरा, गुस्ल किसने दिया, कफन किसने दिया, नमाज किसने पढ़ाई, कैफियत क्या थी, बीमारी क्या थी। अब तारीख ये कहती है कि जब पहले वाले ने पूछा कि ये बताओ कि जब वो बीमार था तो कौन सी बीमारी थी, कई दिन मरज में मुब्तला रहा, बिलाखिर उसने अपना जो कुछ बताना था बताया, और जैसे उसने बता दिया तो मौला ने तकबीर बुलंद की, अल्लाहु अकबर। अब जैसे लफ्ज़ अल्लाह अकबर की आवाज़ पहुंची वो फौरन दूसरा वाला समझ गया भाई उसने तो सच उगल दिया, अब हम क्या करेंगे, हमारा क्या होगा। वो उसने दूसरे वाले ने उससे पूछा कि भाई तुम बताओ, उसने भी अपनी एक हिस्ट्री बताई, तीसरे ने, चौथे ने। और रिवायत कहती है कि जब मुताद्दिद लोगों से सवाल हो गया तो जो बचे हुए लोग तो कहने लगे कि भाई अब यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं, अली की बारगाह में चलो और बस वही कुछ हमारी सज़ा कम करा सकते हैं। बस एक मरतबा सारे अफराद अली की मौला अली की बारगाह में आए और बारगाह में आने के बाद कहने लगे कि ये सच्चा, इसका बाप सच्चा, इसका दावा सच्चा, आए हाय नहीं नहीं, अली के मौजारी, अली के हैरत अंगेज। आप देखिए फैसले कैसे हुए। एक जवान जो नम्मीद हो गया था, जिसे ठुकराया गया, जिसे भगाया गया और जिसे कहा गया जाओ तुम्हारा हक नहीं मिलेगा, तुम्हारे पास कोई गवाह नहीं, उस अली ने कहा तुझे भी बचाऊंगा, तेरे बाप की इज्जत को भी बचाऊंगा और तुझे इतना बुलंद मकाम पर ले जाऊंगा कि दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाएगी अगर अदालत करने का हक किसी को है तो कायनात में सिवाय अली के किसी को नहीं है, सिवाय अली के किसी को नहीं है। मैं मौला अली ने फैसला किया और वो तमाम मालो असबाब जो उसके बाप की विरासत थी उसको दिया गया। अजीज़ों, बुज़ुर्गों, जवानों, मौला आपको सलामत रखे कि आप मुकम्मल तरीके से आमादा हैं। और मैं बहुत मादरत चाहता हूँ कि अगर मैंने आपका वक्त ज़्यादा ले लिया है तो मैं मादरत चाहता हूँ, मगर एक आखिरी जुमला कहना चाहता हूँ। देखिए हम महफिलें करते हैं, ज़िक्र अहले बैत करते हैं, इसकी अज़मत बहुत है, मगर उसके साथ साथ हमें थोड़ा बहुत गौर व फिक्र करना चाहिए, क्या हम इमाम के रास्ते पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अगर चल रहे हैं तो इमाम, और मैं आपको, मेरे उस्ताद का एक जुमला है, हमने कहा था उस्ताद लोग ये कहते हैं कि अरे अली तो कोई नहीं बन पाएगा, अली तो कोई नहीं बन पाएगा। तो जानते हैं हमारे उस्ताद अभी हैं, वो पढ़ा रहे, दर्द दे रहे हैं, वो कहते थे कभी तुमने गहवारे में छोटे बच्चे को झूलता हुआ देखा है? हाय हाय, छोटे हुए बच्चे को गहवारे में झूलता हुआ देखा है? हमने कहा देखा है। कहा कि जब वो बच्चा जिससे मानूस हो, बाप आ जाए, चचा आ जाए, भाई आ जाए, कोई अजीज आ जाए, तो अपने हाथों को उठाता है, हाथों को वो बच्चा गहवारे को उठाता है, तो जो घर का अफराद वहाँ फर्द खड़ा होता है वो फौरन अपने हाथ बढ़ाता है, बच्चों की उंगली को पकड़ता है, हुमक कर वो बाप की, चचा के, भाई के आगोश में आ जाता है। बस मेरे उस्ताद का कहना यह है तुम्हारा काम हुमकना है, सहारा देना मासूम का काम है। तुम कदम तो बढ़ाओ, तुम चलो तो सही। बस आखिर में मैं इन्हीं कलमात के साथ मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शब विलादत के मौके पर, इस जश्न के मौके पर परवरदिगार की बारगाह में दुआ करता हूँ, परवरदिगार आलम हम सबको सीरत अहले बैत और बिलखुसूस सीरत अमीरुल मोमिनीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सलाम करिए भैया।